मिस्टर ओलंपिया शुरू हो चुका है। I persevere, I overcome, and then I win. काम पूरा हो चुका है और एथलीट अब बस मंच पर चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जहां कुछ लोग जैसे कि निक वॉकर पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने शरीर को दिखाते हुए तैयार नजर आते हैं, वहीं माइक समरफील्ड जैसे कुछ अन्य अपने ट्रेनर के जरिए पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया है क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संगठन बॉडी बिल्डर्स की फिर से माप करेगा और यह बात सच में उसे प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है। तो अब यह देखने की प्रतीक्षा है कि आगे क्या होता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह वही शरीर है जिसके साथ वह मंच पर उतरेगा, एक शानदार स्थिति में। क्रिस बमस्टेड के बाद से ऐसा क्लासिक फिजिक नहीं देखा गया। विडंबना यह है कि उसका वजन बढ़ गया है जबकि वह पिछले साल की सीमा पर ही है। यह कैसे संभव है? तो आइए इस वीडियो में मिस्टर ओलंपिया से पहले के कुछ घंटों के बारे में सब कुछ जानते हैं। शुरुआत करते हैं निक वॉकर से, और यह आत्मविश्वास की तस्वीर है। वह अपने शरीर की स्थिति को साझा करने से नहीं डरता, उसके हाथ अविश्वसनीय दिखते हैं। सज्जनों, हम अब उस समय में हैं जब बॉडी बिल्डर्स हुडी पहनकर अधिकतम एकाग्रता के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अब हम 2 साल बाद मिस्टर ओलंपिया में द म्यूटेंट निक वॉकर को फिर देखेंगे। Thank you, brother. I appreciate you. Big fan of yours. निक वॉकर उन महान प्रतियोगियों में से एक हैं जिन्हें देखकर मैंने सोचा था वह ओलंपिया जीत सकता है। जो भी कहता है कि निक वॉकर का आईक्यू कम है या वह बेवकूफ है, यही है असली सवाल। असल में ऐसा लगता है कि सभी कहते हैं कि वे मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरकार सिर्फ एक ही चैंपियन ट्रॉफी होती है। The promoter in India, Manish, he said, Tarek, bring Nick Walker to India. Why do you think you're the most popular bodybuilder in the world? I'm real. What you see on the internet is what you get in person. I'm a hard worker. I persevere. I overcome, and then I win. And what about these guys? A lot of people think that your showing in Pittsburgh is one of the best physiques we've seen in the last couple of years. You said, Tarek, I beat Derek. I don't care what anybody says. Looking at these guys, Hadi, Samson, Derek, do you think you're going to take them down in the next couple of days? Look, these guys are very competitive. These guys are all great champions, but I am the mutant for a reason, and I will be the last man standing come Saturday night. Nick Walker is one of the great competitors. When I saw him in Pittsburgh, I said to myself, he can win the Olympia. Anybody that says that Nick Walker cannot win the Olympia has low IQ or is plain stupid. और जब यह सब हो रहा है तब विवाद भी फैल चुका है, क्योंकि माइक समरफील्ड ने अब तक का एक बेहतरीन शरीर दिखाया है, लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या वह उस वजन को हासिल कर पाएगा जो क्लासिक फिजिक श्रेणी में आवश्यक है। इन ताजा तस्वीरों को देखकर तो किसी को भी उसके शरीर पर शक नहीं होगा। Samson, you are the Mr. Olympia, and historically speaking, the Mr. Olympia repeats the title. That has to be the tendency. We've had Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates, Ronnie Coleman, Lee Haney. Most of the times, the Mr. Olympia retains the title. How do you feel about this lineup? Great competitors, Hadi, Derek, Nick. How do you feel? Are you going to beat them all? Well, I'm ready to retain the title. They say, with Samson's structure, the size you put on, if you come in conditioned, it's lights out. I mean, that's what I think, they say my destiny is in my own hands. I'm probably the only guy in that top 4 that all I got to do is control my own events, and that's it. I don't need to worry about anybody else. If I focus on me, I focus on bringing my A game, there ain't nothing anybody can do about it, and that for me is a real driving force. Focus, man. This is the Mr. Olympia. This is a Super Bowl of bodybuilding. This is winner take all. This is where history is made, and that's my focus. I've been working all year
to be here, bring my best, and make history. So, listen, job's not done. I'm laser focused right now, and that's all I'm thinking about is doing my job, doing it well, and making history. I mean, you gotta love this. You gotta love being in the gym. You gotta love training. You gotta love the discipline. You gotta want to work hard and stay focused and stay at it. And that's where I'm at, man. This whole entire year. Well, thank you for coming by. Appreciate you. Good luck to you. Appreciate you. मैं उससे सहमत हूं कि FB Pro ने खुद को सबसे अच्छे तरीके से संप्रेषित नहीं किया है। हालांकि मेरा मानना है कि वह आधा सच बता रहा है, क्योंकि वह कहता है कि माप में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, न ही एडी के नीचे कोई वस्तु थी। लेकिन हम जानते हैं कि बालों के कारण एक ऐसी स्थिति हुई जिसने माइक समरफील्ड को कुछ अतिरिक्त सेंटीमीटर दे दिए। इसलिए भले ही मैं उसकी हताशा को समझता हूं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने अपनी ओर से जो कर सकते थे किया। बात यह है कि शायद शुरुआत से ही उसे उन अन्य एथलीट्स की तुलना में कुछ बढ़त थी, जिन्हें पहले की प्रतियोगिताओं में ऊंचाई की सीमा पाने के लिए वजन घटाना पड़ा था। आखिरी पल में यह बदलाव करना निश्चित रूप से एथलीट के लिए सबसे हानिकारक है। सही बात तो यह होती कि प्रतियोगिता ने यह सब शुरुआत से ही बता दिया होता, यानी मिस्टर ओलंपिया 2024 के तुरंत बाद। अब हमें इंतजार करना होगा कि क्या मुख्य पसंदीदा खिलाड़ी वास्तव में प्रतिस्पर्धा कर पाएगा या नहीं, जो एक तरह की ऑडिसी बन जाएगी। हम लगभग प्रतियोगिता से ज्यादा माइक समरफील्ड की ऊंचाई देखने पर ध्यान देंगे, जबकि प्रशंसक तो बस यह देखना चाहते हैं कि सभी बॉडी बिल्डर्स मंच पर हों, लेकिन बिना किसी धोखे के, सभी समान नियमों पर आधारित। अगर अचानक हमें क्लासिक फिजिक में एक ओपन बॉडी बिल्डर दिखे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि श्रेणियां किसी कारण से अलग की गई हैं। और अगर माइक समरफील्ड वजन नहीं दे पाता तो उसे उसी श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए जो उसे उचित रूप से मिलती है, चाहे वह 212 हो या ओपन। इसलिए हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर IFBB किसी ऐसे शरीर को प्रतिस्पर्धा करने से रोक दे जो कुछ घंटों में मंच पर जाने वाला है, तो यह पिछले कुछ वर्षों की बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी विवादों में से एक होगा। फिर भी मुझे शक है कि वजन मापने का समय सिर्फ माइक समरफील्ड के लिए ही मुश्किल नहीं होगा। याद रखें कि रमोन डिनो को पहले भी समस्याएं हो चुकी हैं। अगर वे सभी प्रतियोगियों की फिर से माप और वजन जांचते हैं, तो हमें क्या लगता है कि उसे इस साल फिर समस्या नहीं होगी। इसी कारण हमें सब पर ध्यान देना होगा। ये हैं रमोन डिनो के मिस्टर ओलंपिया से पहले के आखिरी घंटे। लेकिन निस्संदेह सबसे प्रभावशाली तस्वीरें हमें अर्श की तैयारी की मिली हैं। लेकिन ओपन श्रेणी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे पास मार्टिन फिटवाटर की तस्वीरें हैं, और मंच पर आने से कुछ ही घंटे पहले उसकी टांगें ऐसे दिख रही हैं। इस बीच एक और बॉडी बिल्डर जिसके बारे में बहुत कम बात हुई है, लेकिन जो मेरे लिए टॉप 7 या यहां तक कि टॉप 6 में भी जा सकता है, वह है तवानी, जिसने अमेरिका में प्रवेश हासिल कर लिया है और जिसे हम मंच पर देखेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसने एक पूरा पोजिंग रूटीन साझा किया है और उसका शरीर इस तरह दिख रहा है। इस बीच जादिच चोन को भी शायद हम उसके करियर के सर्वश्रेष्ठ रूप में देखेंगे। और अगर इस व्यक्ति ने पहले एक MR ओलंपिया जीता है, तो हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है कि अगर वह पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी कंडीशन में है, तो वह फिर से क्यों नहीं जीत सकता। ओपन बॉडी बिल्डिंग अब कई संभावनाओं से भरा हुआ है, और यह मिस्टर ओलंपिया भविष्यवाणी करने के लिए बेहद कठिन है। इसी दौरान क्लासिक फिजिक श्रेणी हमें अब भी आश्चर्यचकित कर रही है, जैसे कि यह तस्वीर लोगन फ्रैंकलिन की, जो पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ पोजर्स में से एक होने वाला है। लेकिन उसे हमारे स्पेनिश बॉडी बिल्डर्स से भिड़ना होगा, और हम जानते हैं कि अगर पिछले साल जोसेमा ने सबको चौंकाया था, तो इस साल वह इस जबरदस्त कंडीशन के साथ क्या कर सकता है। यह आनंद लेने लायक है, क्योंकि जोसेमा असली बॉडी बिल्डिंग की आत्मा है। अब तक हमें लगभग सभी बॉडी बिल्डर्स की झलकियां मिल चुकी हैं। हालांकि वह व्यक्ति जो महीनों से गायब है और जिसने पूरी तरह से सरप्राइज फैक्टर बनाए रखने के लिए कुछ नहीं दिखाया, वह है एंड्रयू जैकेट। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसकी फिजिक की स्थिति अभी भी एक रहस्य है। ये तस्वीरें कई महीनों पुरानी हैं, इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि यह प्रशंसकों के पसंदीदा और शीर्ष प्रतियोगियों में से एक कैसा प्रदर्शन करता है। और अगर किसी का जिक्र करना लाजमी है, तो वह है स्पेनिश बॉडी बिल्डर मैडलमैन, जो 212 कैटेगरी में भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। और इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता रू डीजल की। अगर ओलंपिया से सिर्फ 5 दिन पहले एक तस्वीर में उसकी टांगें ऐसे दिखती थीं, तो हम जो रू डीजल का संस्करण देखने वाले हैं वह ऐतिहासिक होगा। लेकिन 212 कैटेगरी पर लौटते हुए
मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई शक रह गया है कि इसका विजेता कौन होगा।